Hello everyone, here I am Khushbu. Today we discuss about practical questions of standard costing and variance analysis. First of all, we discuss about what is the standard costing and variance analysis. Standard costing. Standard costing is an effective management tool for planning, coordination, and control. It is a system of cost accounting which makes the uses of predetermined standard cost relating to each element cost, namely material, labor, and overhead for each the product manufactured or services. Then, what is a variance analysis? The comparison of the actual performance with the standard performance reveal the variances. For example, the standard cost specified is 15,000 and the actual cost incurred for rupees 13,500, and the such difference of rupees 1,500 is treated as variances. Now let's start with our topic, material variances. Material variances consist of the following variances. First one is material cost variance, second material price variance, third material usage quantity volume variance, fourth one is material mix variance, fifth material sub usage variance, and sixth material yield variance. Now variances are divided into three parts: direct material, direct labor, and overheads. Direct materials are further divided in sub two parts: price variances and quantity or usage variances. And quantity or usage variance subdivided into two parts: mix variance and yield variance. Then direct labor is divided in three parts: rate variance, time for efficiency variance, wage rated revision variance, and time or efficiency variance further divided in mix or gang variance, idle time variance, yield variance, and overheads also is divided into two parts: fixed overheads variance, variable overheads variance. And fixed overhead variance further divided into two subparts: expenditure variances for volume variance, and volume variance further divided in three parts: efficiency variance, capacity variance, calendar variance. And variable overheads variance is divided into two parts: expenditure variance and efficiency variance. Classification of material variance, classification of material cost variance. Material cost variance is the difference between the standard cost of material specified for the actual output and actual cost of material used. मीन्स कि आप मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो आपका एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल कॉस्ट का जो आपकी कॉस्ट स्पेसिफाई की जाएगी और जो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट स्पेसिफाई की जाएगी, उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, standard quantity multiply standard price minus actual quantity multiply actual price. Here is SQ stand for standard quantity, SP stand for standard price, AQ stand for actual quantity, AP stand for actual price. Then standard quantity for actual output is computed as follow: standard quantity divided by standard output multiply actual output. Then material price variances. Material price variances is the actual quantity standard price minus actual price. It means कि जो आपके पास standard price specify किया जाएगा और actual price आप जो pay करेंगे, उन दोनों का difference आपका क्या होगा? Material price variances. The reason for the material price variances may be the following: change in market price, change in quantity of purchase, change in quality of material purchased, emergency purchase leading to higher prices, discount not availed, and rush order to meet shortage of supply. Then third one is material usage quantity volume variance. स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो आपकी स्पेसिफाई की जाएगी और एक्चुअल क्वांटिटी जो आप यूज़ कर चुके हैं, उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? मटेरियल यूसेज क्वांटिटी वॉल्यूम वेरिएंस. द नाउ द रीज़न why we variance arises. First one is use of inferior material, poor inspection of material, lack of due care in the handling of material, abnormal wastage, theft, pilferage of material, setting of improper standards, and improper maintenance of machine. It may be expressed as standard price or standard quantity for actual output minus actual quantity. Relationship among MCV, MPV, and MUV. MCV is equal to
MPV प्लस MUV मीन्स मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस किसके इक्वल होगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस के इक्वल होगा. नाउ वी लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन. इलस्ट्रेशन 1. The standard material required for production is 5200 kg. A price of rupees 2 per kg has been fixed for the materials. The actual quantity of material used for the product is 5600 kg. A sum of rupees 40,000 has been paid for the material. अब आपके पास standard material means standard quantity given है, standard price given है and actual quantity given है. लेकिन आपके पास क्या चीज नहीं है, एक्चुअल प्राइस. एक्चुअल प्राइस तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपके पास ये 14,000 गिवन है उसको आप डिवाइड कर देंगे 5600 kg से. मीन्स 14,000 डिवाइडेड बाय 5600, दैट इज आपके पास एक्चुअल प्राइस आ जाएगा ₹2.50 per kg. Now let's start with our material cost variances. MCV इसका फॉर्मूला आप कर चुके हैं, SQ मल्टीप्लाई SP माइनस AQ मल्टीप्लाई AP. तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है आपके पास 5200 की, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और एक्चुअल क्वांटिटी है 5600 मल्टी आपका एक्चुअल प्राइस आया है ₹2.50. दैट इज 10,400 एंड माइनस 14,000 रुपीज़, तो आपके पास 3600 एडवर्स आ जाएगा. नाउ वी कैलकुलेट मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस. मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस एक्चुअल कॉस्ट SP माइनस AP. तो एक्चुअल कॉस्ट है आपके पास, क्वांटिटी है आपके पास 5600, 2 आपके पास सेलिंग स्टैंडर्ड प्राइस है और एक्चुअल प्राइस है आपके पास ₹2.50. तो 5600 इंटू माइनस 0.50 ₹2800 इज एडवर्स योर मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस. मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस में MUV इज इक्वल टू SP SQ माइनस AQ. यानी आपका स्टैंडर्ड प्राइस कितना था, ₹2 और स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी 5200 और एक्चुअल क्वांटिटी थी 5600. तो 2 मल्टीप्लाई माइनस 400 दैट इज 800. एडवर्स आपके पास क्या आ गया, मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस आ गया. वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, हमने ऊपर किया था कि MCV इज इक्वल टू MPV प्लस MUV. यानी जितना आपका MCV आया है MPV और MUV का टोटल उतना आना चाहिए. दैट मीन्स आपका क्वेश्चन राइट है, सही है. वेरिफिकेशन करी हमने. MCV हमारे पास आया था, उसकी वैल्यू आई थी 3600. MPV और MUV आया है आपके पास 2800 एंड 800. दोनों का टोटल हो करेंगे तो हो जाएगा 3600. दैट मीन्स आपका क्वेश्चन सही है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद अनदर क्वेश्चन. अनदर क्वेश्चन इज our manufacturer requires 10 kg standard material to manufacture 1 unit of product X. The standard price per kg of material is ₹5. The accounting records however reveal that 25,000 kg of material costing ₹1,50,000 were used for manufacturing 2,000 units. Calculate the material variances. Standard quantity for 2,000 units, 2000 मल्टीप्लाई 10 कैसे निकलेगा, 2000 यूनिट्स आपके पास गिवन है, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे. कितना दे रखा है आपको स्टैंडर्ड मटेरियल का, जो यूनिट्स दे रखी हैं वो 10 kg दे रखी हैं. तो टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपके पास आ जाएगी 20,000 kg. तो अब आप एक्चुअल प्राइस निकालेंगे. एक्चुअल प्राइस आपका निकलेगा 1,50,000 डिवाइडेड बाय 25,000 दैट इज ₹6 आपका एक्चुअल प्राइस आ गया. स्टैंडर्ड प्राइस आपको ऑलरेडी गिवन है ₹5 का, एंड जो आपके पास एक्चुअल क्वांटिटी गिवन है वो गिवन है 25,000 की. तो MCV कैलकुलेशन करेंगे. अब हम MCV हमारे पास है SQ इंटू SP माइनस AQ मल्टीप्लाई AP. 20,000 मल्टीप्लाई 5 एंड माइनस 25,000 मल्टीप्लाई 6. 1 लाख माइनस 1,50,000 ₹50,000 एडवर्स आपके पास MCV आ गया. देन उसके बाद मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस. मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में ही किया है. AQ SP माइनस AP. 25,000 आपकी एक्चुअल क्वांटिटी है, सेलिंग प्राइस है
5, स्टैंडर्ड प्राइस है 5 एंड एक्चुअल प्राइस है आपके पास 6, तो 25,000 माइनस 1 इज इक्वल टू रुपीज़ 25,000 एडवर्स. एडवर्स मीन्स जो आपका माइनस में आया हम उसको एडवर्स से शो करेंगे. मटीरियल यूसेज वेरिएंसेस MUV इज इक्वल टू SP SQ माइनस AQ. 5 20,000 माइनस 25,000 रुपीज़ 25,000 आपके पास एडवर्स आ गया. वेरिफिकेशन कर लेंगे आप. MCV इज इक्वल टू MPV प्लस MUV. 50,000 adverse is equal to 25,000 adverse plus 25,000. 50,000 is equal to 50,000. Now illustration third. Given that the cost standard for material consumption are 40 kg at rupees 10 per kg, means आपका standard material हर एक consumption के लिए same रहेगा. Compute the material variances when actual are. ये सब आपको actual variance दे रखे हैं, एक्चुअल क्वांटिटीज़ और एक्चुअल प्राइजेस दे रखे हैं. तो एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हैं SQ इंटू SP माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस. तो आपके पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑलरेडी गिवन है ऊपर क्वेश्चन में 40 kg मल्टीप्लाई 10 माइनस कर देंगे इसमें से फर्स्ट वाली जो एक्चुअल आपके पास प्राइस गिवन है और क्वांटिटी गिवन है. तो एक्चुअल प्राइस है आपके पास 48, एक्चुअल प्राइस है आपके पास 10 एंड एक्चुअल क्वांटिटी है आपके पास 48. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 48 इंटू 10 तो आपके पास एडवर्स ₹80 आ जाएगा आपके पास मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस. फॉर डिफरेंट आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस निकालने हैं सेम एज बी पार्ट सी एंड डी पार्ट. 40 इंटू 10 माइनस 40 इंटू 12 ₹80, 40 इंटू 10 माइनस 48 इंटू 12 1676 एंड 40 इंटू 10 36 इंटू 10 ₹40. दैट इज 296 MCV आपके पास आ गया. देन उसके बाद आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकलेगा सेम एज MPV इज इक्वल टू AQ SP माइनस AP. 48 10 माइनस 10 यानी 48 इंटू 0 नील हो गया. 40 10 माइनस 12 इज इक्वल टू ₹80 एडवर्स. 48 10 माइनस 12 इज इक्वल टू ₹96 एंड 36 10 माइनस 10 नील. MPV आ गया आपका 176. देन उसके बाद MUV निकालेंगे आप. SP इज SQ माइनस AQ. 10 40 माइनस 48 इज इक्वल टू ₹80 एडवर्स. 10 40 माइनस 40 इज इक्वल टू नील. 10 40 minus 48 ₹80 एंड 10 40 minus 36 इज इक्वल टू ₹40. तो MUV आ गया आपके पास 120. वेरिफिकेशन करेंगे. MCV आपका 296 A आया था तो MPV प्लस MUV. A मीन्स एडवर्स तो MPV प्लस MUV 176 प्लस 120 296 इज इक्वल टू 296. 4th पॉइंट मटीरियल मिक्स वेरिएंस. मटेरियल मिक्स वेरिएंस होता क्या है? मटेरियल मिक्स वेरिएंस होता है वो वेरिएंस जो आपके मटेरियल यूसेज को स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर होता है उसमें डिफरेंस को दिखाता है. वो होता है आपका MMV मटेरियल मिक्स वेरिएंस. मीन्स कि जैसे आपने MMV आपके पास सेलिंग प्राइस है, स्टैंडर्ड प्राइस है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल मिक्स एंड माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, जो भी वैल्यू आपके पास आएगी दैट इज़ योर मटेरियल मिक्स वेरिएंस. RSQ और स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल मिक्स इज कंप्यूटेड एज फॉलो. कैसे निकलेगी आपकी जो आपकी एक्चुअल जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल मिक्स निकलनी है वो कैसे निकलेगी? जो आपके पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी गिवन होगी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ मटेरियल मल्टीप्लाई एक्चुअल मिक्स ऑफ मटेरियल. यहाँ पे एक नोट दिया गया है कि हमारे को स्टैंडर्ड एक्चुअल फॉर एक्चुअल मिक्स को क्या कहते हैं हम? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी. नाउ डिस्कस विद इलस्ट्रेशन 4. फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट मटेरियल मिक्स वेरिएंस. मटेरियल ABC स्टैंडर्ड क्वांटिटी गिवन है, स्टैंडर्ड प्राइस गिवन है, एक्चुअल क्वांटिटी गिवन है एंड एक्चुअल प्राइस गिवन है. मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैसे निकलेगा अब आपका? SP SQ माइनस AQ. SQ माइनस AQ. SP है आपके पास स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 5. स्टैंडर्ड उसके बाद जो
स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे रखी है वो 10 और एक्चुअल क्वांटिटी दे रखी है वो 10 दे रखी है। तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू नील। देन ऐसे ही मटेरियल बी का गिवन है। मटेरियल बी का गिवन है आपके पास 2 स्टैंडर्ड क्वांटिटी गिवन है, स्टैंडर्ड प्राइस गिवन है, सॉरी स्टैंडर्ड प्राइस गिवन है 2 एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी गिवन है 15 एंड एक्चुअल क्वांटिटी गिवन है 10 इज इक्वल टू 10 फेवरेबल आएगा आपके पास। मटेरियल सी इज इक्वल टू 3 जो है आपके पास स्टैंडर्ड प्राइस दे रखा है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 25 और एक्चुअल क्वांटिटी है 30, 15 एडवर्स आ जाएगा। तो MMV5 कैसे आएगा ये अब हम डिस्कस करते हैं। तो MMV आपका 5 कैसे आया, आपके पास फेवरेबल केसेस थे 10, फेवरेबल केसेस थे आपके पास 10 एंड एडवर्स थे 15, यानी -15 + 10, तो आपके पास 5 एडवर्स क्या आ गया, MMV आ गया। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। उससे पहले आपके पास एक पॉइंट दे रखा है मटेरियल सब यूसेज वेरिएंसेस, मींस जब आप टोटल स्टैंडर्ड मिक्स को एक्चुअल स्टैंडर्ड मिक्स की डिफरेंट क्वांटिटी के साथ कैलकुलेशन करते हो, दैट इज़ योर मटेरियल मिक्स वेरिएंस, सॉरी मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस। Standard quantity for actual output, SQ stand for standard output is for quantity for actual output, RSQ revised standard quantity or standard quantity for actual mix, and SP is equal to standard price. फॉर्मूला है MSUV is equal to SQ minus RSQ multiply SP. Illustration 5 material XY quantity to standard quantity price and amount are given, actual quantity price and amount are given, find out material variances। फर्स्ट वन मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस आप निकाल लेंगे, MCV का फॉर्मूला होता है SQ मल्टीप्लाई SP माइनस AQ मल्टीप्लाई AP, मीन स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई एक्चुअल प्राइस। एक्स एंड वाई निकल जाएगा आपका, एक्स आ जाएगा 128 एडवर्स एंड मटेरियल वाई का आ जाएगा 40 एडवर्स। MCV का आप इसका वेरिफिकेशन करके देखेंगे, सॉरी MCV आ जाएगा आपके पास 128 मल्टीप्लाई 40 सॉरी प्लस 40 इज इक्वल टू 168 एंड सेकेंड वन इज मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस। मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस निकलेंगे आपके SP माइनस AP और AQ। तो SP है आपके पास 2 रुपीज़ एंड AP है 2 रुपीज़ 20 पैसे मल्टीप्लाई एक्चुअल जो क्वांटिटी है वह है 240 की, और मटेरियल वाई की आ जाएगी आपके पास 5 माइनस 4.50 मल्टीप्लाई 120 इज इक्वल टू 60 फेवरेबल केसेस। तो फेवर 60 माइनस 48 हो जाएगा आपके पास 12 फेवरेबल आ जाएगा। देन मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस, मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस में आपके पास आ जाएगा SP मल्टीप्लाई SQ माइनस AQ। मटेरियल एक्स है आपके पास, एस सेलिंग स्टैंडर्ड प्राइस जो था आपका 2 रुपीज़ है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी 200 एंड एक्चुअल क्वांटिटी है 240, 80 रुपीज़ एडवर्स आ जाएगा एंड मटेरियल वाई का आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 100 माइनस 120 इज इक्वल टू ₹100 एडवर्स। तो ₹180 आपका एडवर्स क्या आ गया, MUV आ गया। फोर्थ पॉइंट है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। MMV का फॉर्मूला था RSQ माइनस AQ मल्टीप्लाई SP। RSQ फॉर मटेरियल एक्स, लास्ट हमने जो फॉर्मूला किया था इसका वो ये किया था RSQ का स्टैंडर्ड कैसे RSQ मीन्स जो आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल मिक्स की निकलेगी वो कैसे कंप्यूट करेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ मटेरियल मल्टीप्लाई एक्चुअल मिक्स ऑफ मटेरियल। तो इट मीन्स आपकी जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो है 200, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 200 डिवाइडेड बाय 300, कितनी है आपकी स्टैंडर्ड की टोटल क्वांटिटी 300 मल्टीप्लाई बाय 360, एक्चुअल क्वांटिटी का जो टोटल होगा वो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्चुअल मिक्स ऑफ मटेरियल। तो आपके पास 240 kg आएगा, सेम एज वाई का होगा। 100 आपके पास क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी गिवन थी, टोटल है आपके पास दोनों का एक्स वाई का टोटल, उसे हम बोलते हैं एक्चुअल मिक्स स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ मटेरियल, मीन्स आपका जो टोटल होगा क्वांटिटी का वो 300 है मल्टीप्लाई 360 इज इक्वल टू 120 kg एंड एक्स का आ गया आपके पास 0, वाई का भी आ गया 0, तो यानी MMV क्या आ गया आपकी नील आ गई। फिफ्थ पॉइंट मटेरियल सब यूसेज, आपने इसमें फॉर्मूला क्या यूज़ करना है SQ माइनस RSQ मल्टीप्लाई SP। तो x इज इक्वल टू 200 माइनस RSQ कितना है आपके पास एक्चुअल क्वांटिटी 240
राइट। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड प्राइस से, तो वो है 2, तो 80 आ जाएगा एक्स का और वाई का आ जाएगा 100, तो दोनों को हम टोटल करेंगे 180 हो जाएगा। वेरिफिकेशन कैसे होगी, एम सी वी इज इक्वल टू एम पी वी प्लस एम यू वी, तो एम सी वी आपका आया था 168 एंड एम पी वी और एम यू वी आपका आया था 12 प्लस 180, दोनों साइड इक्वल हो गई। देन उसके बाद एम यू वी को वेरिफिकेशन करेंगे, एम यू वी किसके इक्वल होगा, एम एम वी प्लस एम एस यू वी के, तो एम यू वी था आपका 180, एम एम वी आपका नीला आया, एम एस यू वी आया आपके पास 180, दैट मीन्स ये भी आपका सही क्वेश्चन है। उसके बाद 6 क्वेश्चन आर सेम, वी कैरी ऑन विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक इट इज six question are same. We discuss about another question is question number 7. Question number 7 is MYV मटेरियल यील्ड वेरिएंस। इसमें जो आपका निकालना है, आपने कैलकुलेशन करनी है, वो है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट, एक्चुअल लॉस माइनस स्टैंडर्ड लॉस फॉर एक्चुअल मिक्स, या फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट, एंड स्टैंडर्ड यील्ड फॉर एक्चुअल मिक्स ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड लॉस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मिक्स मल्टीप्लाई एक्चुअल मिक्स। क्वेश्चन नंबर 7, द स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज एज फॉलो। मटेरियल ए बी का दे रखा है, यूनिट्स गिवन है, नॉर्मल वेस्टेज गिवन है 40 एंड नेट यील्ड आया आपके पास 160, प्राइस दे रखे हैं ₹4 एंड 3, टोटल अमाउंट आ गई आपके पास 660, इसमें से आप सेम रहेगा आपकी 660। द एक्चुअल प्रोडक्शन वाज ओनली 120 यूनिट्स, मटेरियल यूज्ड 80 units of A and 120 units of B, calculate material yield variances। द एक्चुअल प्रोडक्शन वॉज ओनली 120 यूनिट्स, यानी आपको उसने 120 यूनिट्स का क्या बोला है कि ये जो आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन है वो कितने यूनिट्स की है, ओनली 120 यूनिट्स की। लेट्स स्टार्ट विद अवर सॉल्यूशन। मटेरियल ए एंड बी, क्वांटिटी गिवन है ए की 60, प्राइस गिवन है 4, मल्टीप्लाई करेंगे 240 आपकी अमाउंट आ जाएगी, सेम एज बी में होगा, 140 क्वांटिटी है, प्राइस है 3, तो अमाउंट आ जाएगी आपके पास 420। 60 और 140 का टोटल किया आपने 200 आ गया, ठीक। उसके बाद आप इसमें से लॉस लेस कर देंगे, आपका 40 जो लेस था, तो आपके पास जो है स्टैंडर्ड यील्ड आ जाएगा आपके पास 160। उसके बाद ऐसे ही अमाउंट सेम रहेगी 660, ऐसे ही एक्चुअल मिक्स का करेंगे 80 120 गिवन है, एक्चुअल मिक्स आपके पास 80 यूनिट्स ए की दे रखी हैं, बी की 120 दे रखी हैं, टोटल हो जाएगा 200, और इसका लॉस कितना है, 80 यूनिट्स का लॉस है, तो इसमें से 80 माइनस करेंगे, आपके पास आ जाएगा 120 एक्चुअल यील्ड आ जाएगी। ये जो आपके पास 80 आया, आपके पास जो टोटल यूनिट्स थी, जो टोटल आपके पास एक्चुअल प्रोडक्शन थी, वो कितने यूनिट्स की थी, 120 यूनिट्स की थी। उसमें से 40 आपने जो है स्टैंडर्ड में आपका लॉस हुआ, तो रिमेनिंग कितना बचा, 80 बचा, तो 80 जो है वो आपका किस में जाएगा, एक्चुअल मिक्स का लॉस होगा 80, तो आपके पास स्टैंडर्ड यील्ड आ जाएगा 120। अब जो आपका प्राइस था, एक एक्चुअल मिक्स की क्वांटिटी का 80 था, प्राइस था 4, अमाउंट आ गया 320, सेम एज बी में 120 क्वांटिटीज़ थी, प्राइस आ गया, प्राइस है इसका 3 और अमाउंट आ जाएगी आपके पास 360। इसमें से 200 में से 80 माइनस किया, 120 आपकी एक्चुअल यील्ड आ गई, सेम एज इसकी अमाउंट जो रहेगी वो 680 रहेगी। अब इसमें इन्होंने कुछ कैलकुलेशंस गिवन की हैं हमारे को लास्ट में, कि आपका मटेरियल यील्ड वेरिएंस कैसे, हम इसको कैलकुलेशन इन्होंने दे रखी है, आपके पास एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल यील्ड थी आपके पास 120, स्टैंडर्ड यील्ड थी आपके पास 160, लेकिन हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्ट गिवन नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड कॉस्ट की टोटल अमाउंट है 660,
उसको आप डिवाइड कर देंगे, ये वाली अमाउंट जो 660 अमाउंट है इसको आप डिवाइड कर देंगे जो आपके पास स्टैंडर्ड यील्ड आई है। इट मीन्स आपको 660 को 160 से डिवाइड करना है, तो आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी ₹4125 पर यूनिट। तो MYV का फॉर्मूला में अब इसको हम पुट करेंगे, 120 माइनस 160 मल्टीप्लाई 4 ₹125 पैसे, दैट मीन्स आपके पास आंसर आ गया 165 एडवर्स। Now illustration 9. Illustration 9, standard cost, material cost for 1600 kg of product X is made up of A, B, C material. Quantity given है 30, 40, 80 kg. Price है ₹4, ₹5, ₹6. Amount आ गई 120, 40 into 5 200, 80 into 6 480. In a batch 500 kg of product X were produced from a mix of material A, B, C. Quantity आ गई, quantity given है 140, 220 and 440. और प्राइस है ₹4.20, ₹4.80, ₹6.50। अमाउंट आ गई 588, 1056, 2860। हाउ डू प्राइस मिक्स एंड यील्ड फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द वेरिएंस इन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्स ओवर द स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब आपको इसमें प्राइस मिक्स एंड यील्ड फैक्टर्स को कंट्रीब्यूट करके आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट का भी पता करना है। वो कैसे होगा, आपके पास लॉसेस जो हैं वो इसमें हम कैलकुलेशन करनी सीखेंगे। फर्स्ट है आपके पास स्टैंडर्ड की और एक्चुअल की। स्टैंडर्ड का आपका मटेरियल दे रखा है ABC, क्वांटिटी है 30, 40 और 80। टोटल हो गया इसका 150, प्राइस 456, मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा आपके पास 800, जो है इसकी टोटल अमाउंट आ जाएगी। लॉस कैसे कैलकुलेशन होगी आपकी इसकी, इसका लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। आपके पास जो स्टार्टिंग क्वेश्चन में गिवन है कि 100 kgs की आपकी स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट है, मींस आपकी स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट जो है वो है आपकी 100 kg, ठीक है। लेकिन जो आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो तो आ रही है 150 की, यानी आपको लॉस कितना का हुआ, क्वांटिटी है आपकी 150, कॉस्ट आ रही है 100, तो आपके पास लॉस कितने का हो गया, -50 का। दैट मीन्स आपके पास लॉस हो गया 50 -50 कर देंगे, 150 में से 50 माइनस किया तो 100 आपके पास आ जाएगी, SY आ जाएगी। देन ऐसे सेम एज एक्चुअल का भी आप कैलकुलेशन कर लेंगे। तो एक्चुअल में आपके पास कितनी गिवन थी, जो एक्चुअल की आपकी दे रखी थी वो थी, जो एक्चुअल आपके पास एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट थी दैट इज 500, राइट। और आपका जो एक्चुअल क्वांटिटी आ रही है वो टोटल आ रही है 800 की। तो इसमें आपको कितना लॉस हो गया, 300 का लॉस हो गया। तो आप 800 में से 300 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 500। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने इसको ऐसे कैलकुलेशन नहीं करना है तो आपके पास देखो टोटल कितना आया 150 एंड 100 आपके पास जो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट है वो दे रखी है, तो 50 का आपको लॉस हो गया। इट मीन्स आपका लॉस कितना है 50 एंड अनदर साइड इज 300। अब फर्स्ट ऑफ ऑल रिविजन शैल बी कैरिड आउट एज फॉलो। SQ हम कैसे निकालेंगे, एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल ए का निकालेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी 30 और स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है 100 का, और मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल आउटपुट। तो एक्चुअल आउटपुट कितने की थी हमारी 500 की थी, ठीक है। तो एक्चुअल आउटपुट जो आपकी ये है, ये एक्चुअल आउटपुट है, एक्चुअल आउटपुट ये है। एंड आपकी स्टैंडर्ड आउटपुट
जो है वो है 100, जो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही गिवन है, ठीक है। तो इससे आप निकाल लेंगे ए बी एंड सी। ए आ गया आपके पास 150 kg, बी आ गया 200 kg एंड सी आ गया 400 kg। अब हम निकालेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर ए एम। ए एम मीन्स एक्चुअल मिक्स एंड स्टैंडर्ड मिक्स। तो वो निकलेगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मिक्स मल्टीप्लाई एक्चुअल मिक्स। तो 30 बाय 150 इंटू 800 160 kg ए का, तो 40 बाय 150 इंटू 800 213.33 kg बी का, एंड सी का 80 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 800 इज इक्वल टू 426.67 kg आपका आ गया सी का। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट आपने कैलकुलेशन करनी है, वो कैसे होगी? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल वो है आपके पास 800 की, जो आपकी टोटल अमाउंट आई। स्टैंडर्ड आउटपुट कितनी थी? 100 की। ये रही आपकी जो है स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल, दैट इज योर स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट ₹800 डिवाइडेड बाय 100 kg is equal to ₹8 per kg. Now standard yield for actual mix, standard yield divided by standard mix multiply actual mix। standard yield आई है आपकी 100 kg और standard mix है आपका 150 kg इंटू 800 kg, आपके पास आ जाएगी स्टैंडर्ड yield फॉर एक्चुअल मिक्स। अब आपके पास MCV आ जाएगा, MPV आ जाएगा। MCV है, MCV तीनों A B C का आ जाएगा। फर्स्ट का आ जाएगा 12 फेवरेबल केस, बी 56 एडवर्स, सी का 460, टोटल आ गया 504। एमपीवी आ गया, एमपीवी में भी सेम अपना फॉर्मूला लगेगा, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ए बी सी, ए का आ गया 28 ए मीन्स एडवर्स, बी 44 एफ मीन्स फेवरेबल, सी यानी जो फेवरेबल मीन्स जो आपका पॉजिटिव आएगा, सी 220 एडवर्स आ जाएगा। इसका टोटल आ गया आपके पास 204। उसके बाद है आपके पास MUV निकालेंगे। MUV सेम आ जाएगा फॉर्मूला, SP मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। A इज इक्वल टू 4 इंटू 150 आपके पास जो है एक्चुअल आउटपुट दे रखी थी, जो आपने अभी पीछे निकाली थी 150 और 200 400, जो लास्ट में है आपके पास 40। तो ये आ जाएगा आपके पास ए का आ जाएगा 40 फेवरेबल, बी का 100 एडवर्स, सी का 240 एडवर्स। तो 300 एडवर्स आपके पास MUV आ जाएगा। फोर्थ MMV निकालेंगे। MMV आपकी निकालोगे तो आपका सेम फॉर्मूला आ जाएगा, बस अब आप इस टाइम पे क्या यूज़ करेंगे, इसमें SP इंटू RSQ माइनस AQ जो आपका फॉर्मूला था वो यूज़ करेंगे। 160 213 एंड 426 आपकी SAM आई थी, तो आपके पास A का आ गया 80 फेवरेबल, B का आ गया 33.35 एडवर्स, C का आ गया 79.98 एडवर्स, टोटल आ गया आपके पास 33.33 एडवर्स। नाउ फिफ्थ MYV मीन्स मटेरियल यील्ड वेरिएंसेस, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड फॉर A। ₹8 per kg मल्टीप्लाई 500 kg माइनस 533.33 kg 266.67। अल्टरनेटिव भी आप इसका ऐसे भी निकाल सकते हैं, उसके बाद वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन में भी सेम ही आएगा। इलस्ट्रेशन 10 आर सेम एज 9 क्वेश्चन। Illustration 11. Now we'll discuss about illustration 11. Illustration 11. The standard cost of a company shows standard mix 40% of material A at ₹10 per ton, 60% of material B at ₹20 per ton. The normal loss is production in 10% input. During the month of February 2014, the cost in production records reveal the following: 90 ton materials A at the cost of ₹9 per ton, 110 tons of material B at the cost of ₹24 ton. The yield produced 190 tons of good production. Calculate material price variances, material usage variances and material yield variances.
लेट्स स्टार्ट विद अवर सॉल्यूशन. स्टैंडर्ड मिक्स मटेरियल गिवन है ए, आपके पास मटेरियल गिवन नहीं है तो उसको आप कैसे कैलकुलेशन करोगे. इसमें जो आपका ये दे रखा है मटेरियल जो होगा, मतलब आपकी मटेरियल कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकलेगी. 40% ऑफ मटेरियल आपको दे रखा है, तो आपके पास जो टोटल दे रखा है वो 90 टन और 110 टन दे रखा है, तो ये हो जाएगा आपके पास 200 टन्स, राइट. उसके बाद 40/100 इंटू 200 80 टन हो जाएगा. 40/100 इंटू 200 जो भी आपके पास वैल्यू आएगी 80, वो आपकी ए की स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगी. ऐसे ही सेम एज बी में 60/100 इंटू 200 120 क्वांटिटी, टोटल हो जाएगा 200. 10% लॉस दे रखा है, तो 200 का 10% कितना हो जाएगा 20. इट मीन्स आप इसको 200 में से 20 माइनस करोगे तो आपके पास 180 आपके पास स्टैंडर्ड यील्ड आ जाएगी. सेम एज इसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट निकल जाएगी. आपके पास 10 रुपीज़ और 20 रुपीज़ दे रखी है इसकी स्टैंडर्ड प्राइस, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी 800 और 220 400, टोटल आ गया आपके पास 3200. ऐसे ही एक्चुअल मिक्स दे रखा है 90 और 110 का, तो टोटल हो गई आपके पास 200. 10% इसका भी दे रखा है, तो इसमें से 10 माइनस हो जाएगा 190 आ जाएगा. और इसका एक्चुअल प्राइस दे रखा है 9/24, एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी 810 2640 और इसका टोटल आ जाएगा 3450. नाउ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट विल बी कंप्यूटेड एज फॉलो. ए इज इक्वल टू 80/180. 80 आपके पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी है ए की, डिवाइडेड बाय जो आपका सेलिंग स्टैंडर्ड यील्ड है, मल्टीप्लाई 190 जो आपके पास एक्चुअल यील्ड है. उसके बाद आ गया आपके पास 84.44, एस पी आ गया 10, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई आपके पास 84.4. ऐसे ही बी का निकाल लेंगे. अब आपके पास एम सी वी निकालना है, एम पी वी निकालना है एंड एम यू वी निकालना है, एम वाई वी निकालना है. तो एम वी तो मटेरियल एमसीवी कैसे निकलेगा. टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट आई है आपकी 3377.73. टोटल एक्चुअल कॉस्ट है आपके पास 3450. तो स्टैंडर्ड आपकी एमसीवी आ गई 72.27 एडवर्स. ऐसे ही बी की आ जाएगी. बी में आपका फॉर्मूला लगा है, जो एमपीवी आपने निकालना है, बी पॉइंट मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस, वही सेम लगेगा. एक्चुअल क्वांटिटी एसपी माइनस एपी, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस. तो आपका पास ए का था एक्चुअल क्वांटिटी थी आपकी 90, स्टैंडिंग प्राइस था आपका 10 और एक्चुअल प्राइस था आपका पास 9, तो इज इक्वल टू ₹90 फेवरेबल हो गई. बी इज इक्वल टू 110, 20 माइनस 24 इज इक्वल टू ₹440 एडवर्स, तो ₹350 एडवर्स आपके पास आ गया. देन इसमें इन्होंने मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस भी निकाले हुए हैं, इज इक्वल टू एस पी एस क्यू माइनस ए क्यू. तो एस क्यू स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट. तो एस पी स्टैंडर्ड प्राइस था आपके पास 10 एंड उसके बाद आपके पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी 84.44 की और 90 आपके पास जो थी एक्चुअल क्वांटिटी थी. तो माइनस करके आ गया 55.60 एडवर्स एंड बी का आ गया 3.40 फेवरेबल आ गया. तो आपके पास आंसर आ गया 277.80 फेवरेबल. मटेरियल मिक्स वेरिएंस ऐसे ही निकाल लेंगे हम, एस पी एस क्यू माइनस ए क्यू. ए है आपके पास, ए की जो स्टैंडर्ड प्राइस दे रखे हैं वो 10 दे रखे हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 80, एक्चुअल क्वांटिटी है 90, तो ₹100 एडवर्स ए का आ गया. ऐसे ही बी का आ जाएगा ₹200 फेवरेबल केसेस, तो टोटल आ जाएगा आपके पास 100 फेवरेबल. नाउ सी पार्ट था हमारा मटेरियल यील्ड वेरिएंस. ए एक्चुअल यील्ड माइनस RSY मल्टीप्लाई SC स्टैंडर्ड कॉस्ट इज इक्वल टू 3200, जो आपका आई थी वैल्यू 3200 स्टैंडर्ड कॉस्ट का टोटल आया था. डिवाइड कर देंगे 180 से, यानी जो स्टैंडर्ड यील्ड थी उसको आ जाएगा आपके पास 17.78. तो MYV आपके पास आ गई 190 माइनस 190 एक्चुअल यील्ड थी जो आपके पास RSY 180, यानी स्टैंडर्ड यील्ड जो आई थी 180 और स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गया आपके पास 17.78 ₹117.8 फेवरेबल आपके पास
आ गया। वेरिफिकेशन ऐसे ही कर लेंगे, एम सी वी इज इक्वल टू एम पी वी प्लस एम यू वी, तो दोनों को टोटल करेंगे, इधर आया 72.27, इधर आया 350 प्लस 7.8, तो आपके पास आ गया 72.27 इज इक्वल टू 72.27 एडवर्स, सेम एज एम यू वी का आ जाएगा।